student. Today I am going to discuss with you a particular topic. This topic is related to the international affairs. As a student of law, when you appear for the prelims or for mains, the question comes, should we prepare for the current affairs too, especially international affairs? So present time, it is very important burning topic for all the students, including the judiciary student, what is happening in Israel-Palestine dispute and how the UNO is playing the role. So we are going to discuss the role of UNO as well as the role of the parties of the UNO and what has been resolved through the UNO organs in this dispute. So recently in this week we have heard a lot about that there are many celebrities of Bollywood, Hollywood and others. They are saying that we need to see the Rafah. Question comes, what is this Rafah is and what is the dispute behind? So there are two things. One important thing, a city known as Rafah is particularly is in news. Second thing is that International Court of Justice has issued a particular order against the Israel to stop military offensive, means to say any kind of war. So what is this all scenario we are going to discuss here. So first of all, just see through the background of this case, we know that there is a dispute of Hamas. Hamas is means to say a territory group. It is supposed to be a group which is increasing the violence in a particular territory. And the Israel is going to make an attack to completely, abolish, completely destroy this Hamas terrorist group. But what is the issue behind this? तो एक चीज़ हम इसको देखेंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे कि अभी जो यूनो ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे कि एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द हाईएस्ट ऑर्गन, लीगल ऑर्गन ऑफ यूएनओ विच डील्स विद द लीगल डिस्प्यूट. So we remember there are total 6 organs of UNO and one of the UNO organ is International Court of Justice. And International Court of Justice last week has issued that order against the Israel. Now the question comes, what is the whole background here? So please just see what is written in this content, because basically we are dealing with a topic that United Nations Court ordered Israel to immediately halt military assault on Rafah. So we will deal here what the Rafah is, correct? हम इसको देखेंगे ये राफा क्या है और क्यों इंटरनेशनल डोमेन में इसको प्रोटेक्ट करने की हम बात कर रहे हैं. सेकेंडली देखेंगे ये जो टॉप कोर्ट है यूनाइटेड नेशन का, जिसे आप क्या बोलते हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. अभी जो इसने ऑर्डर इशू किया है टू प्रिवेंट दिस इजराइल, व्हाट इट इज. नाउ एक थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या बैकग्राउंड था. तो बेसिकली रिमेंबर स्टूडेंट, फॉर अ करंट अफेयर पर्पस वी नीड टू नो कि अभी साउथ अफ्रीका ने एक एप्लीकेशन फाइल किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और इन्होंने बोला कि देखिए इजराइल जो है वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी है दैट इज कॉल्ड राफा. इस राफा में इन्होंने एक अटैक किया है एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस अटैक देयर आर अ मास किलिंग हैज बीन डन. There are many civilians have been died because of this attack. So this is not just a particular war. It is, we cannot say it is a war, but actually it is a genocide. तो साउथ अफ्रीका हैज रिक्वेस्टेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कि आप ऐसा इमीडिएट कोई ऑर्डर इशू करें जिससे इजराइल जो है इस कंटिन्यूड वॉर को, अटैक को रोक दे, बिकॉज इससे जेनोसाइड हो रहा है, द पीपल आर किल्ड. लेकिन क्वेश्चन ये आता है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जेनोसाइड को लेके क्या कॉम्पिटेंट है टू डिसाइड द मैटर. तो एक चीज़ मैं ब्रीफ में बताऊंगी आपको कि देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ कोर्ट. एक आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और एक है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. रिमेंबर स्टूडेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ चीफ लीगल ऑर्गन ऑफ यूएनओ which is already having its separate charter of 70 articles which deals with the legal dispute among the parties, among the members of UNO, that is the International Court of Justice. Now the question comes, what is this International Criminal Court? International Criminal Court is constituted through a Rome's Convention, and the object of this court, that is International Criminal Court, is to resolve the dispute whenever it finds that there is genocide, mass killing, war kind of offense has been made.
So if there is any mass killing in terms of genocide has happened, International Criminal Court takes into action. और वहाँ पर अभी लास्ट वीक में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो चीफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं, रिमेंबर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हमें ज़रूरत है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल है, राइट, उनका नाम क्या है करंट अफेयर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट, बेंजामिन नेतान्याहू, एंड जहाँ डिफेंस मिनिस्टर हैं दैट इज योव गैलेंट, और बाकी इस हमास के जो लीडर्स हैं जिनकी तरफ से टेरिटोरियल अटैक किया जा रहा है, इन सभी के अगेंस्ट हमें एक अरेस्ट वारंट इशू करना चाहिए. सो बेसिकली द स्टार्टिंग केम कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ने एक एप्लीकेशन फाइल किया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कि ये जो पर्टिकुलर पीपल हैं इनके अगेंस्ट हमें अरेस्ट वारंट डालना चाहिए, बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ देयर एक्शन द मास किलिंग हैज बीन मेड इन द प्लेस ऑफ राफा. नाउ द क्वेश्चन कम कि राफा क्या है, तो आई एम गोइंग टू लेट यू नो दैट राफा इज एक्चुअली अ पर्टिकुलर सिटी. It is a city where more than lakhs of people lives, and these are especially those people who have migrated because of the war between Israel and Palestine. So they are generally the civilian. Now when Hamas, actually होता क्या है कि हमास ने अक्टूबर 2023 में एक अटैक किया इसराइल पर, और जहाँ पर कई सारे लोगों का मास किलिंग हुआ, and to retaliate, to get the response for that, Israel is continuously retaliating to that particular offense. और वहाँ पर इनका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो हमास एक टेरिटोरियल ग्रुप है, टेररिज्म क्रिएट करते हैं, इस ग्रुप को हमें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना है. इस ऑब्जेक्ट के साथ इजराइल इज टेकिंग दिस होल थिंग एज अ वॉर. बट क्वेश्चन इज दैट इफ योर ऑब्जेक्ट इज ओनली टू डिस्ट्रॉय the terrorist organization Hamas, why these civilian people are going to be affected by this? इसीलिए जो राफा जो मेट्रो सिटी है, इस सिटी में there is a larger kind of mass killing being done. The result was that because of this attack. तो ये जो होल सिनेरियो है इस पे लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी ऑर्डर किया, और इस ऑर्डर में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साउथ अफ्रीका के इनिशिएटिव पे कहा कि जो राफा है, इस राफा में इजिप्ट और गाज़ा, जो इजिप्ट और गाज़ा वाला जो एरिया है, ये इजिप्ट एंड गाज़ा, ये जो इजिप्ट और गाज़ा का जो एरिया है, इस एरिया पे यानी कि जो राफा का एरिया है, यहाँ पर हम ह्यूमैनिटेरियन एड्स देना चाहते हैं. ह्यूमैनिटेरियन एड्स मीन्स you know that foodings and other kind of necessities is to be provided by UNO. तो यहाँ पर हमें इनको प्रोवाइड कराना है नेसेसिटीज़. एंड इन एडिशन टू दिस, यहाँ पर यूएनओ ने कहा कि भाई यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि इतने सारे लोगों की मास किलिंग अगर राफा सिटी में हो रही है, जहाँ पर सारे लोग हमास तो है नहीं, टेररिस्ट तो है नहीं, सिविलियंस हैं, तो अगर इनकी इतना ज़्यादा मास किलिंग हो रही है तो उस पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. So to take the proper investigation of the reasons and the causes of mass killing in the city of Rafah, the UNO give this initiation that there should be commission, should be go forward, investigation should be properly done. For that purpose, Israel should allow them to reach this place. So if you are bombarding on that place, if you are attacking, you are taking all that kind of war kind of atmosphere, how the civilian or the commission can survive there for the purpose of investigation? तो ये सारी चीज़ों के लेके इन्होंने बोला कि भाई आप प्रॉपर इनका एक रोड, एक जो रास्ता है एक छोड़ दीजिए जिससे कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए. सो एज यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन कि इन्होंने बोला कि इजराइल हेल्प करे और ये सारा वॉर रोक दे, क्योंकि हमें एक्सेस प्रोवाइड कराना है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है विद इन 1 मंथ. 1 मंथ के अंदर हमने एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है यूएनओ को. और क्योंकि आपको पता है कि यूएनओ का काम है टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर अमंग द नेशंस, और जिसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, जबकि लीगल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए जो ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. So taking all these facts together,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर किया कि आप इमीडिएट स्टेप पे इस वॉर को रोक दो. द पर्पज इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रोटेक्ट द पीपल लिविंग इन राफा सिटी एंड सेकेंडली टू मेक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑन द कॉजेज ऑफ दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट. तो ये सारी चीज़ें हैं. इसके अलावा अब एक क्वेश्चन और भी बनता है कि सपोज करो अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसी ऑर्डर को इशू कर रहा है, पास कर रहा है, तो पहली बात मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएनओ का एक चीफ ऑर्गन है जो लीगल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है. दूसरी बात है कि हम थोड़ा सा इसको कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे इसका. देयर आर टोटल 15 जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड वेन एवर एनी डिसीजन इज टू बी टेकन देन quorum of 9 judges should be there. Quorum of 9 judges can pass any lawful order. Now the question come, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर इशू किया है अगेंस्ट इसराइल टू इमीडिएट स्टेप पे आपने वॉर को रोकना है, तो ये इसका इफेक्ट क्या होगा, वेदर इट इज बाइंडिंग ऑन इसराइल और नॉट. सो रिमेंबर स्टूडेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कोई भी जो भी आप डिसीजंस होते हैं उसके लिए उसके पास इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है. सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर अपने किसी भी ऑर्डर को इन्फोर्स कराना चाहता है सो इट नीड्स टू टेक द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. सो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा वेदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज ऑल्सो टेकिंग एज मच सीरियस स्टेप एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टेकिंग अगेंस्ट इसराइल और नॉट. सो बेसिकली दिस डिसीजन इज नॉट बेसिकली बाइंडिंग एज इट शुड बी टू द फिलिस्तीन. इसके बाद मैंने जैसे बताया आपको कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी हाल में ऑर्डर पास किया अगेंस्ट इसराइल, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कैसे वोट्स थे. तो रिमेंबर 13-2, यहाँ पर टोटल 15 जजेस में से 13 जजेस ने बोला कि एग्जैक्टली वी नीड टू स्टॉप इसराइल टू मेक एनी फर्दर मिलिट्री अटैक ऑन द प्लेसेस ऑफ गाजा विच इज पर्टिकुलरली अ सिटी ऑफ राफा. लेकिन देर आर 2 nations which denied to support this order. Now the question come in the prelims, for example, because it might be a standard question कि कौन से वो कंट्रीज हैं जिन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई हम तो आपके ऑर्डर के साथ नहीं हैं. तो जनरली आपको पता होना चाहिए इजराइल इज देयर, इजराइल विल नॉट सपोर्ट इट. एक जज जो इजराइल के थे और दूसरे जो जज हैं वो युगांडा के थे. तो आप लोग हमेशा याद रखोगे कि इजराइल और युगांडा ये 2 नेशंस हैं जिनके जजेस ने इस ऑर्डर को सपोर्ट नहीं किया, बट स्टिल देयर आर 13 जजेस हु आर सेइंग दैट दिस काइंड ऑफ ऑर्डर शुड बी पास्ड. राइट नाउ थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड भी देखेंगे. जैसे कि मैंने आप सबके साथ डिस्कशन किया कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो डिस्प्यूट है वो इंटरनेशनल डोमेन में एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. लेकिन हमें जो इसमें देखना है कि इसमें बैकग्राउंड में हम ऐसा क्या है जो अभी हम राफा के कंटेक्स्ट में पढ़ सकते हैं. तो रिमेंबर स्टूडेंट, इजराइल ने ऑफेंसिव यानी ये जो वॉर है, ये जो अटैक है, ये क्यों शुरू किया, क्वेश्चन आता है. और ये गाजा में क्यों शुरू किया, बिकॉज इट इज सपोज दैट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास इज हैविंग इज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द टेरिटरी ऑफ गाजा. राइट, यहाँ पर ये जो हमास के जो गनमैन्स थे इन्होंने इजराइल के अगेंस्ट एक अटैक किया एंड द पीपल वर डाइड. इसके रिस्पॉन्स पे इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 में जो अटैक किया इसमें मोर देन 1200 पीपल वर अटैक एंड टेकिंग 252 अदर्स बैक टू द गाजा एज हॉस्टेज. सो एटलीस्ट अब आप रिजल्ट देखोगे कि इस पूरे टोटल वॉर में दोनों ही साइड से फोर्स एंड वायलेंस यूज़ हुआ, बट रिजल्ट जो हुआ वो ये था कि 335,800 फ़लस्तीनियन जो पीपल हैं वो किल्ड हुए. सो बेसिकली ये जो वॉर हो रहा है, अगर ये टेरिटरी के बेस पे अगर हमास और फ़लस्तीन लड़ रहे हैं तो फिर सिविलियन क्यों ऐसे मास किलिंग हो रहा है. सो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि द पीपल हु आर बेसिकली सिविलियन, वाई दे आर किल्ड. सो इतना लंबा मास किलिंग हो रहा है, जैसे यू कैन सी द नंबर, और इट माइट बी दैट नंबर इज मोर देन दिस. 35,800 people were killed in this war since the Gaza's Hamas issue, or this has been issued by the Health Ministry of Hamas territory. Now इसके बाद एक चीज़ और है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इनके जो प्रेसिडेंट है इनका नाम भी आपको याद रखना है. इनका नाम है नवफ सलम. नवफ सलम सेड कि जो सिचुएशन है फ़लस्तीन में वो इस तरीके की है दैट वी नीड टू टेक सम सीरियस एक्शन.
So it is not about any, we don't need to go for the favor of Israel and Palestine. We just need to stick toward the civilian rights. So taking this fact into consideration, साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के उस इनिशिएटिव के बाद, जिसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ने ये चीज़ क्लियर किया कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो भी हो रहा है उससे जो ऑफेंस हुआ है, जो भी अटैक्स हुआ है, उसमें जेनोसाइड हुआ है. सो जैसे ही जेनोसाइड का ऑफेंस होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है, और इसीलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ने एक एप्लीकेशन दिया था लास्ट वीक कि ये पर्टिकुलर लीडर्स हैं जो कि इजराइल और हमास दोनों के हैं, यहाँ इनको अरेस्ट वारंट इशू किया जाए और एक स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाए उनके अगेंस्ट, विच वुड बी अ गुड मैसेज टू द होल सोसाइटी. इसके जस्ट बाद साउथ अफ्रीका हैज टेकन इनिशिएटिव, इट हैज़ फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कि आप इमीडिएट स्टेप लीजिए सो दैट इट विल प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिविलियन पीपल एंड ऑफ कोर्स दे विल नॉट बी have suffered this kind of nuisance. So finally this is the whole scenario which I was discussing with you, and it will be very important topic for your examination purpose. So that is requested to all the students ki whenever you are going for international current affairs, please make short notes on what is happening in the Israel-Palestine, especially the role of UNO. So in brief, I would say that the United Nations organization, which is having 193 members, it is having the primary purpose to maintain peace and order, and isliye to ensure this peace and order, International Court of Justice has issued the order to stop this war. So this is all for you. Thanks for watching this video.